Now, our next speaker is Sri Ashutosh Jani ji. A brief introduction about him. Sri Ashutosh Jani ji is learning about the rural societies by living with them in the eastern part of Gujarat. Formerly an engineer from IIT Madras and having worked in education in the rural areas of Gujarat, Ashutosh ji, along with his wife Sneha ji, is interested in learning and documenting traditional knowledge systems and traditional crafts. Having traveled across more than 15 states of Bharat, especially in the remotest villages, Snehaji and Ashutoshji are keen on understanding and preserving this traditional knowledge. Presently, they make clay and wooden sculptures, wooden toys, natural homes using clay, stone, lime, wood, and bamboo, and teach all of this and the entire process of khadi, right from cotton picking to fabric making, to the students of Gotirth Vidyapeeth. They are learning and realizing the true sense of Bhartiyata by working towards opening up more and more avenues for the expression and sharing of experience based understanding emerged from the traditional societies. They have also started two YouTube channels to share many of their learnings with the interested audience. Now, may I please invite him on the dais? Namaskar, everyone. So, as we know, the topic is about economic sutras. So, let's first of all give it a thought about what the global economy is like, how it is run today. We all know that almost every nation is not following the gold standards anymore, right? So, we are in a scenario where the prices of every commodity are bound to rise continuously, endlessly. So this is something which can be termed as a continuous depreciation of global currency. It's not that the prices are increasing here. If milk was available at 20 rupees a liter a few years back, if it has come to 50, 60 rupees a liter, the same scenario is there with the US. It might be a few dollars and now it's a little more. It might be a few euros a few years back, now it's a little more. So it's not that one currency is strengthening and the other currency is weakening. Each and every currency, without any exception globally, is weakening, is becoming cheaper and cheaper. Yeah, relatively one might be weakening slowly and one might be weakening faster. That's a different scenario altogether. But on the absolute scale, everything is weakening. So what kind of society we are living into? We are continuously devaluing the currency, the cash that we possess. So we all know what happened in Zimbabwe a few years back. We all know what happened in Venezuela a few years back. Right? People had to carry truckloads of currency to buy a packet of bread. Those days are not far for almost each and every country if we continue following the same path. Right? Or else we might have to print currency notes of 10 lakh rupees, 1 crore rupees. Those days are also not far. Right? So, giving it a thought as to what trap we are into. Now, I'll just take a small detour from here and we'll pick this up later. Uh, when we talk about economy, recently, a few years back, Shashi Tharoor made some bold statements against the UK about the reparations and all. So we proudly say that we were almost 33% of the global economy in the 19th century, 18th century, etc. But let's just wait for a while and give it a thought on what GDP is. Let's assume a hypothetical scenario where somebody is going by car, you meet with an accident, your bonnet is totally broken, tires are broken, the person is having some injuries, so the car will be sent away to the workshop. New parts will be manufactured, new parts will be fixed up, labor cost will be paid. Insurance company will be receiving premium regularly, so insurance company will be paying for that. The person is having injury, he'll be hospitalized. Since he is hospitalized, he'll be undergoing a surgery or some other medical treatment. Medicines will be manufactured, doctors will be paid some amount. So ultimately, it's a great financial transaction. To meet with an accident is a boon for GDP, isn't it? So, at the very outset, we need to think about it. What parameters do we believe are best for our to evaluate our wellness? Being best in GDP, does it ensure that we are doing well? Nowadays they've got so many other parameters, right? Human Development Index, some happiness index, and so many indices. We always get caught into these numbers because the West is always hell bent onto creating numbers and creating webs around the numbers, and we get caught into it.
but we do not pay attention to the kind of parameters that they are dealing with. So if we understand, we should be able to define the parameters. It's okay. GDP could be something. GDP could be good, but do we understand that GDP is not the right measure to evaluate our wellness? That's the thing I want to leave you with. I want you to brainstorm over it. There are not definite answers to many questions, and it's rightly said that it's very important to stay with the question for a long time. Only then the answer appears in front of us. Similarly, so it is said that wealth generation is happening here and here. If you carefully look at the entire world, wealth generation cannot happen apart from the sun. The forest and the agriculture are the only two activities which are generating wealth. Apart from that, everything else is conversion from one form to the other. And we talk about wealth generation all the time, and we don't even look at the only and the best wealth generation options we have. So we are so much caught up into the Western framework of numbers and of indices and of details and reports and numbers, all these things. Similarly, I was having some discussion with some speakers yesterday evening at the time of dinner. We were talking about the developed countries and developing countries and underdeveloped countries. Who, what is the definition of a developed country? What's the definition of a developing country? There is no definition whatsoever. All this came into existence post Second World War. Post Second World War, the West had to divide the world into a few parts for their own good. And it is said that Harry Truman, then US president, he delivered a lecture somewhere and he just threw a random idea and people picked it up. So we are so good at picking up whatever the West throws like a garbage, and we always pick it up. And we proudly say we are a developing country. Now, how can we be a developing country where safety for almost everyone and anyone is almost ensured, and there some child goes into a school and shoots so many people? How can that be a developed country? We just don't give it a thought. I'm just throwing some random examples to throw light on the fact that we need to be very, very cautious while dealing with these parameters and these definitions. These definitions are actually creating a web just like a spider to catch hold of us. And we keep fighting them that no, we'll win over you in GDP, we'll win over you in this index and that index. That is not something we have to do. That's not our way of looking at Arthashastra. So if that is not our way of looking at Arthashastra, then what is it? How do we say that we are doing good economically? As we said, accident is a good exercise for GDP. So if that's not something we want to do, what do we understand as the best situation in terms of economics from Indic perspective? We all can ponder about it. So maybe we'll talk about this also in a little while. So these parameters that we talk about, they need to be challenged. The developed countries and all that we say, that is, we know that that all has happened by looting the Southeast Asia, Africa, and when we talk about sustainability, the first thing that has to be challenged is this American dream. That is just not sustainable. If I mean, Gandhiji very rightly said in Hind Swaraj that if we want to follow that path, maybe we'll have to import 2 or 3 Earths to loot them, because we are such a huge country and it's not even our blood to do that. So economically, it is very important for us to look at the world and to ponder about it, what direction we should be taking. सो ये इन्फिनिट मॉडल ऑफ ग्रोथ वाली जो बात है, ये जो जीडीपी वाली जो बात है, ये सबके पास एक बड़ा बंगला होना चाहिए, सबके पास 2-3 गाड़ी होनी चाहिए, ये जो सारी बातें, ये सारी बातों के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, इनको चैलेंज भी करना पड़ेगा। अब मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ हिंदी में। अब इसलिए मैंने स्विच किया क्योंकि अब तक तो दुनिया की बातें चल रही थी, अब अपने देश की बात चल रही है। कुछ ज़्यादा किताबें विताबें पढ़ी नहीं है, हम लोग गाँव में घूमे, जैसे अभी बताया रितुल जी ने। गाँव में घूमते घूमते हमने कुछ अनुभव किए हैं, और ये सब अनुभवों के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा हमारे गुरुजी रविंद्र शर्मा जी, दिलाबाद तेलंगाना में। उनके द्वारा बताई गई बातों के विषय में, सूत्रों के विषय में आशीष गुप्ता जी विस्तार से बात करेंगे, तो मैं उस विषय में अभी नहीं जा रहा हूँ। उनके साथ रहकर हमें भारत को अपने नज़रिए से का देखने का वरदान मिला, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले हम अपने देश को हमेशा पराई दृष्टि से देखते थे। जैसे हमने इंडाइसिस की बात की, हम उस तरह से देखते थे कि मेरा देश कहाँ पर खड़ा है, हम कहाँ पर है, उसके लिए हमें हमेशा पश्चिम से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी। तो उससे हट करके हम कहाँ पे हैं, ये हम स्वदृष्टि से कैसे देखना सीखें। तो ये किया, और फिर हमने तय किया कि हम एक गाँव में रहेंगे। गुजरात के छोटा उदयपुर ज़िले में एक छोटे से गाँव में हमने रहना चालू किया। वहाँ पर रहकर हम कोई ट्रेनिंग नहीं देते थे, किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, क्योंकि हम सीखने के लिए गए थे, हम सिखाने के लिए नहीं गए थे। वी आर वेरी क्लियर कि अगर हमें लगता है कि हम कुछ सिखाने के लिए गए हैं,
तो एक एरोगेंस आता है आप में, एक ईगो डेवलप होता है। सो वी वर वेरी क्लियर, वी वर डाउन टू अर्थ, कि हमारे पास जो भी एक्स वाई जेड जानकारी है वो हम कमरे में बंद करके रखेंगे। हम जब गांव में किसी के पास में जाएंगे तो हम एक कोरी पार्टी की तरह जाएंगे और उनके साथ बात करेंगे, उनके अनुभव से सीखेंगे। किसानों से सीखेंगे, गांव की महिलाओं से सीखेंगे, कारीगरों से सीखेंगे, बच्चों से सीखेंगे। तो ये सारे अनुभवों में हम बगल के गांव के कुम्हार के यहाँ पर जाने लगे। मिट्टी का काम हमें बड़ा पसंद है, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम, हाथ से कुछ काम करना पसंद है हमें। खादी का काम, ये सब काम हम करते रहते हैं। वहाँ पर खादी का काम करने वाले कोई है नहीं, तो वैसे हमारे कोई दोस्त बने नहीं। मिट्टी लकड़ी का काम करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे। तो उनके यहाँ जाकर हमने जब देखा, बस घर में पति पत्नी दो ही लोग थे, ना कोई उनका बच्चा था, ना माता पिता भी नहीं थे, गुजर गए थे। दो लोग रहते थे, बढ़िया मटके बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। और उनके यहाँ मटकों का बड़ा सा ढेर लगा हुआ होता था। तो एक बार हमने पूछा उनसे, उनका नाम राजू भाई था, अभी तो चल बसे। पूछा, राजू भाई ये इतने सारे मटकों का आप क्या करते हो, कहाँ बेचते हो, यहाँ से ट्रक भर के ले जाते हो, कैसे करते हो, ट्रक का किराया होता होगा। हम लोग वही करेंसी के टर्म्स में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इनको कितना रुपया मिलता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हम नहीं बेचते हैं। तो फिर नहीं बेचते तो बनाते क्यों हो, घर के लिए चाहिए तो दो बना लो, चार बना लो, हजार हजार मटके बने हुए पड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि हम हर साल दिवाली से पहले पहले या दिवाली के बाद बाद में उसी समय पे गांव में जा कर के सबके घर पे दिया होता है, कढ़ाई होती है, हांडी होती है, मटका होता है। कुछ कुछ वहाँ के नियम है कि 5 या 6 प्रकार के मिट्टी के बर्तन होने चाहिए, वो हर घर में जाकर देते हैं। हर घर में जाकर वो देते हैं। फिर हमने पूछा कि अच्छा ये बताइए पूरे सेट के कितने रुपए होते हैं, तो बोले एक भी नहीं। इतना सारा आप दे रहे हो, उनके घर जाके दे रहे हो, एक भी रुपया नहीं, बोले नहीं। फिर क्या होता है, तो बताया उन्होंने कि दिवाली आती है अश्विन के मास में, अश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष का जो मास है, उस समय वहाँ पर धान की फसल तैयार हो जाती है। मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूँ वहाँ पर धान और मक्का, ये दो फसल प्रमुख हैं। तो उन्होंने बताया कि धान की फसल तैयार हो जाती है तब, और छड़ाई होकर चावल निकल जाता है उसमें से। तो उस समय पे गांव में हम घर घर जाते हैं एक बड़ा सा टेम्पो लेकर के, और जिस घर में जाते हैं वो घर वाले अपने यहाँ से अनाज बहुत सारा निकाल कर हमें दे देते हैं। वैसा ही होता है फाल्गुन या तो चैत्र मास में, जब मक्के की फसल तैयार होती है, फिर से हम सबके घरों पे जाते हैं। हम देते कुछ नहीं है, ये लेते हैं। तो वापस से हमने पूछा कि बताइए कितने किलो लेते हैं। एक घर से 5 किलो लेते हैं, 10 किलो लेते हैं, कितना लेते हैं। तो बोले ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये तो किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें कितना देगा। कोई घर से हमें 2 किलो भी मिलता है, कोई घर से हमें 20 किलो भी मिलता है, जो भी मिलता है वो हम ले लेते हैं। उनके घर में आप मानोगे नहीं, सालाना 5 टन अनाज आता है। कितना? 5 टन। किसके घर में 5 टन अनाज दो व्यक्ति के घर में सालाना इस्तेमाल होगा? संभव ही नहीं है। तो उनके उनकी फूड सिक्योरिटी का क्या। हम, जैसे अभी रिकमेंडेशंस की बात चल रही थी, तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डी गवर्नमेंटलाइजेशन होना चाहिए, डी कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए। समाज के पास पूरी क्षमता है, बस सरकार कुछ चीज़ों में आना छोड़ दे। क्या है इसकी सोशल सिक्योरिटी, समाज ने इतनी सुंदर व्यवस्था बना के रखी है। अच्छा ये सब करने के बाद भी गांव में जितना देना बनता है उसके बाद भी वो उससे अतिरिक्त बटके बना लेते हैं, वो बाजार में बेचते हैं। अच्छा उसके लिए भी उनको जाना नहीं पड़ता, व्यापारी खुद अपना साधन लेके, अपना वाहन लेके आ जाता है, उसमें ये लोग भर के ले जाते हैं। उनकी जो करेंसी की नीड्स है छोटी मोटी, बहुत कम नीड्स होती है करेंसी की गाँव में। गाँव में आराम से 2-3 हज़ार में महीना चल जाता है, और वो 2-3 हज़ार में राजा के ठाठ के जैसे चलता है। घर पे 10 मेहमान आ गए, आप बढ़िया देसी घी के लड्डू बना के खिलाओ, फिर भी आपका 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। तो करेंसी नीड्स तो बहुत कम है, बाकी सारी नीड्स उनकी वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस प्रकार के जीवन को जब हमने देखा, तो पता चला कि ये समृद्धि यहाँ पर दिखती है। ऐसा ही एक अनुभव हुआ था हमारा आदिलाबाद में, जब हम गुरुजी के यहाँ आश्रम में थे। वहाँ पर एक कुम्हार आया करता था मिट्टी का काम करने के लिए, विजय था उसका नाम। तो हमने जब उससे पूछा, तो हमें बता रहा था कि हम भी ऐसे ही करते हैं। तो उस समय दालों के दाम बहुत हमारे यहाँ पे बढ़ गए थे। आपको पता होगा, 3-4 साल पुरानी बात है, कि जब दाल के दाम बढ़े हुए थे, तो कई सारे लोगों के घर में दाल बनना बंद हो गई। तो हमने पूछा इनसे कि आप बताइए कि आपको कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। बोले नहीं, हमें कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो दाल के दाम तो दुकानों के लिए बढ़े हैं। किसान तो पहले जिस दाम में बेचता था आज भी उसी दाम में बेचता है, और हमारा व्यवहार किसान से है, हमारा व्यवहार दुकान से नहीं है। और चूंकि हमारा व्यवहार किसान से है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उस समय भी मैंने कुछ एक लिखा था कहीं पे कि विच डायरेक्शन वी शुड गो टू, विजय और वेनेजुएला। उसी समय वेनेजुएला क्राइसिस भी हुई थी।
तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को लेकर के ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। एक दो छोटी-सी बात रख के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे यहाँ अन्न, दूध, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा का व्यापार वर्जित था। ये सब का व्यापार इसलिए वर्जित था क्योंकि ये सबकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। ये सबको मिलना ही चाहिए। दूध का भी व्यापार वर्जित था, घी का नहीं था। घी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, दूध नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हो सकता है। हमने कई सारे गाँव में ये सब होते हुए देखा, उनसे पूछा। चिकित्सा की भी कल बात चल रही थी, तो चिकित्सा में भी हमारे यहाँ पर ये व्यवस्थाएं देखी गई है। धर्मपाल जी की किसी पुस्तक में पढ़ा था, मुझे पुस्तक का नाम अभी याद नहीं है, छोटी सी कोई पुस्तिका थी, उसमें लिखा था उन्होंने कि हमारे यहाँ की व्यवस्था में ये हुआ करता था कि गांव में यदि बीमारी फैलेगी तो वैद्य को किसान की तरफ से, कारीगरों की तरफ से जो भी दिया जाता था वो उसकी राशि कम होगी। आज की अर्थव्यवस्था, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, वही व्यवस्था है कि समाज बीमार होगा तो चिकित्सक का आर्थिक लाभ होगा। यदि हम चिकित्सा के आर्थिक पक्ष को देखें, भारतीय व्यवस्था ये कहती है कि समाज में बीमारी फैलेगी तो चिकित्सक को आर्थिक रूप से घाटा होगा। ये सूत्र हमारे ध्यान में होना चाहिए। जब तक हम इस सूत्र को ध्यान से नहीं देखेंगे, कोई भी पैथी समाज को स्वस्थ नहीं करती, क्योंकि हर एक पैथी का कल्याण समाज को बीमार करने में है। ये सादी सी बात कई बार हमारी समझ से छूट जाती है। तो खैर, ये बहुत और भी कुछ उदाहरण हैं जिसके ऊपर अभी मैं नहीं चाहता हूँ, और एक छोटी सी बात करके अपना यहाँ पर बात खत्म करता हूँ। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है, हमने सोचा कि इसे हम कैसे अपने जीवन में उतारें। तो हमने गुरु जी की प्रेरणा से 2016 2017 के साल से या 16 के साल से गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। यहाँ पे जो मूर्ति आप देख रहे हैं सामने, वो मूर्ति मेरी पत्नी ने, स्नेहा ने बनाई हुई है। तो हम लोग हर वर्ष कुम्हार के यहाँ से मिट्टी ला के 10 15 20 लोग मित्र सब मिल करके मिट्टी बनाते हैं। कश्यप ऋषि के द्वारा रचित एक काश्यप शिल्प सूत्र है, उसमें गणेश जी के 32 स्वरूप दिए हुए हैं। तो उन्हीं स्वरूपों को हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये उसमें से वीर गणेश का स्वरूप है, जिसके हाथ में एक तरफ 8, दूसरी तरफ 8, कुल मिलाकर 16 हाथ है। 16 हाथों में अस्त्र शस्त्र है। वीर गणेश है, युद्ध मुद्रा में है तो खड़े हैं, कुछ बैठे हुए अवस्था में होते हैं। अलग अलग उनके स्वरूप है। तो ये हम बनाते हैं और ये मूर्तियाँ हम बेचते नहीं हैं। हर साल करीब करीब 40 50 मूर्तियाँ बनती है, कभी 30 बनती है, कभी 35, कभी 55। और ये मूर्तियाँ हमारे जो यजमान हैं उनको दी जाती है, उनको बेची नहीं जाती। और हमारे यजमान बदले में हमें पैसे नहीं देते, हम पैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि आप किसी भी जैविक किसान के पास से कुछ लाकर हमें दीजिए, आप देसी गाय का घी हमें दीजिए, या तो आप कोई किसान या कारीगर के द्वारा हाथ से बना हुआ कुछ सामान हमें ला कर दीजिए। आप हमें 100 ग्राम गेहूं दोगे तो भी चलेगा, आप 10 किलो सोना दोगे तो भी चलेगा। तो कितना, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। उनके मन में जो भाव प्रकट होता है उस तरह से। और ये 6 7 वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोग आते हैं मूर्ति सीखने के लिए, तो एक तो उसके लिए भी आप सबको निमंत्रण है कि आप लोग, अभी अगले महीने से हम काम शुरू करेंगे कि आप सब में से जो भी आना चाहे हमारे यहाँ पे आ सकता है। कार्यक्रम घर में ही होता है, कोई संस्था नहीं है, परिवार भाव से ही पूरा काम होता है। और उसी तरह से एक और काम हमने शुरू किया है पिछले 5 6 सालों से, कि हम लोग सेंधा नमक मंगवाते हैं और सेंधा नमक देते हैं लोगों को। सेंधा नमक इसलिए कि हमने जो 200 300 परिवारों को देना प्रारंभ किया, सभी के परिवारों में बीपी और थायराइड की समस्याएं खत्म हो गई। आयोडाइज सॉल्ट को क्यों हमारे देश के ऊपर थोपा गया, ये अभ्यास का एक विषय है जिसके ऊपर आप सब अभ्यास करें, ये मेरा निवेदन है। तो नमक, चूंकि ये जीवन की आवश्यकता है, तो उसमें व्यापार नहीं हो सकता। तो इसीलिए जिस दाम में मिलता है उसी दाम में सबको देते हैं। अभी तो 45 रुपये किलो मिलता है, तो उसी दाम में देते हैं। बाजार में 70 80 90 100 से कम में मिलता नहीं है। तो ये कोशिश है कि जीवन के लिए जो आवश्यक है उसका व्यापार ना हो, उसका केवल विनिमय हो। बाकी हमारे यहाँ लेन देन की, आदान प्रदान की कई सारी विधियाँ हैं, कई सारी पद्धतियाँ हैं। तो अ, आशीष गुप्ता जी एक तरह से हमारे गुरु भाई, बड़े भाई के स्वरूप में ही है, और हम दोनों के चिंतन में बहुत सारी समानताएं हैं। और इसीलिए मैंने उनको शायद जिस विषयों के ऊपर बात करनी है उन विषयों को छुआ नहीं है, ताकि रिपीटेशन ना हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम के लिए आप सबका स्वागत है, जब भी आप आना चाहो। धन्यवाद।